Maybe I'd arrive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And you spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to the ridge. गार्ड को विसर्जन कराने की अनुमति चाहते हैं श्रीमान। जय सर। सम्मान गार्ड विसर्जन। एक चिंगारी जंगल को राख बना देती है, हजारों जिंदगियां एक पल में मिटा देती है। संरक्षण ही समाधान है हमारा, जंगल बचाना है फर्ज हमारा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस दिनेश कन्नन, IFS, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, RNWP एंड चेयरपर्सन FTI एंड अदर ऑफिसर, स्टाफ, पार्टिसिपेंट्स एवं यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण का इस फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के कोर्स इनॉग्रल फंक्शन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। A bouquet speaks the language of grace, a gentle smile on every face. With blooms so fresh, pure and bright, we offer respect with all our might. Now I request Ms. Richa, Forester Trainee, to present a bouquet to our chief guest, Dr. S. Dinesh Kannan, IFS, CCF, RNWP and Chairperson FTI as a token of respect and warm welcome. Now I request Suman Lata, Forester Trainee, to present a bouquet to Shri Ravikant, IFS as a token of respect. Now I request Tasneem Yusuf, Forester Trainee, to present a bouquet to Shri Pawan Gupta, IFS as a token of respect. दीप के ज्योति से सुख और समृद्धि का मार्ग खुलता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है, अज्ञानता का अंधकार दूर होता है, कार्य की शुरुआत में शुभता का संचार होता है। इसी के साथ मैं मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथियों से आवेदन करती हूँ कि वह दीप प्रज्वलित कर इस उद्घाटन समारोह का शुभारंभ करें। सर प्लीज। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशया दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक को, ज्योति को हमारा शत शत प्रणाम। May auspiciousness and goodness follow. May health and wealth, prosperity abound. May the enemy's intellect be destroyed. And salutations to the light of knowledge and wisdom. Now I would like to request Shri Ajit V. John, Director FTI, to kindly come forward and extend a warm welcome to our esteemed guests, dignitaries and participants present here today. Sir, please. Good morning to one and all present here. I take the privilege to welcome each one of you present here on this inaugural function of 5 days training program on forest fire management for frontline staff, sponsored by Director of Forest Education, Dehradun.
At the outset, I take this privilege to welcome our chief guest, Dr. S. Dinesh Kannan, IFS, Chief Conservator of Forest Research and Working Plan, and Chairperson, FTI, to this inaugural function. Sir, your vast experience in the field of forestry and environment conservation and dealing with forest fire and your tenure as a nodal officer, Forest Fire, Andaman and Nicobar Island, will surely enrich this training program and this learning process. I take this opportunity to welcome Sri Ravikant, IFS, Chief DCF, and Sri Pawan Gupta, IFS, to this inaugural function. Your presence will surely give a boost to this training program. I also give a heartfelt welcome to our executive staffs who have come here from different range and different division to participate in this training program. Your work in the field to deal with the forest fire, to protect the forest, is of immense importance. As we all know that forest fire not only destroys our forest valuable assets, it also affects the wildlife, our environment, biodiversity, and local communities which are living in the forest, which are dependent on forest, or living in the fringe areas of the forest. This training program has been specially designed and carefully designed to enhance your skill, to enhance your knowledge and preparedness to deal with this forest fire. I once again welcome each one of you, our dignitaries and our special guests to this occasion. Welcome you. Thank you, sir. Now I request all the participants to kindly introduce themselves one by one. Sir, myself P. Ashraf Hussain, forester, posted at DCF for people, sir. Sir, myself John Calvin from Little Andaman, sir. Sir, myself P. Mohammad Shafiq, forest guard from Diglipur division. Jain sir. Myself S. Manohar, forester, currently posted in the Middle Andaman Forest Division. Jai sir. Myself Mohammad Binyamin from Mayabandri division. Posting at South Andaman Division. Jain sir, Abdul Samir, head forest guard sir, Middle Andaman division. Jain sir, my name is Abhendranath Haldar, I am from Middle Andaman Forest Division. Sir, myself Mohammad Sahil, forest guard, currently posted at Diglipur Forest Division. My name is Savita Devi, from Baratan Division. I am forester. Jain sir. I am Indu Nikhil, forest guard, currently posted at Diglipur Forest Division. Jain sir. Sir, myself James Kujur, forest guard, posted in South Andaman Division, Manali. Jain sir, myself Mohammad Sadiq, currently posted at Baratan Forest Division. Jain sir. Myself Tirupati, head forest guard, Baratan Division. A single spark can start a flame, turning forest to ash, wildlife to pale. Protect the green, act wise and fair. Stop forest fires, show that you care. Lots of leaders have the power to inspire the guide. With great honor and respect, I now invite our chief guest, Dr. S. Dinesh Kannan, IFS, CCF, RNWP and Chairperson FTI to address the gathering and formally inaugurate this course of forest fire management. Sir, please. Good morning, everyone. Director FTA Ajit Bijan. Director FTA Ajit Bijan, Ravikant, Pawan Gupta, all the staff present over here. Once again, namaskar. First of all, मैं आपका डायरेक्टर अजीत बीजान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये 5-day प्रोग्राम के लिए उन्होंने ही अरेंज किया था. उनको याद होगा आपका वो चार्ज लेने के पहले ही एडिशनल चार्ज में रहने के टाइम ही मूव्ड द फाइल. दिस प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज फंडेड बाई ICFRE देहरादून. उनका फंड से ये प्रोग्राम करने के लिए प्रपोजल वाज मूव्ड बाई हिम ओनली. एक महीने पहले वो तो फाइल मूव किया था, फिर दोबारा रेगुलर चार्ज लेने के बाद फॉलो करते करते ऐसे प्रोग्राम पर इधर तक लेकर तो आ गया. इसके लिए मैं पहले अजीत बिजान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. ये प्रोग्राम ICFRE फंडेड है. मेनली इट इज़ फॉर फॉरेस्ट फायर रिलेटेड एक्टिविटी है. फॉरेस्ट फायर हमारा फॉरेस्ट का
डैमेज करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल तो प्ले करता है। बट थ्रूआउट इंडिया में सब जगह पर बहुत है, बट अंडमान में उतना तो फॉरेस्ट फायर नहीं है। बट फॉरेस्ट फायर इज नॉर्मली इट इज अ काइंड ऑफ अ डिजास्टर। ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए तो हम तैयार तो होना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डिजास्टर के लिए तैयार होना है, उसका तैयारी के लिए तो ये 5 डे प्रोग्राम बनाया गया है। ये 5 डे प्रोग्राम बहुत सोच समझ के, स्पीकर भी कहाँ कहाँ से लेना है वो सोच समझ के लिया है। इनिशियली हमारा डिस्कशन था कि ठीक है लोकली कोई ऑफिसर होगा उनसे ही हम ये वाला 5 डे का ट्रेनिंग कर देंगे बोलकर सोचा था। फिर बाद में डिस्कशन में नहीं, इधर से लेने से फिर वही सेम आइडिया होगा, बेटर हम मेनलैंड से किसी को बुलाएंगे। उसमें 1-2 साइंटिस्ट और ऑफिसर्स पर्सनली आने में इंटरेस्ट दिखाया। कुछ लोग बोला कि हम नहीं आ पाएगा, इसलिए हम तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीसी में हम लोग हमारा प्रेजेंटेशन करेगा बोलकर भी बोला है। इससे लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि 5 डे प्रोग्राम आपको बहुत यूज़फुल लगेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। लोकली हम क्या क्या देख रहे हैं, उसी के अलावा नेशनली चल क्या रहा है, उसके अलावा दुनिया में चल क्या रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट फायर। छोटा छोटा इश्यू होगा, उसको तो सीखने से हमको भी अच्छा लगेगा। डिसास्टर कभी भी हो रहा है उसी में हम आगे जाके काम करने के लिए हमको भी अच्छा तो लगेगा। इसी के साथ मैं दूसरा एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। अभी तो बुलाया गया है डिप्टी रेंजर फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड को। हम एक बार ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद, पहले तो हम तो डिपार्टमेंट पर आया है, आने के बाद 6 महीने 1 साल 2 साल अपना पोस्टिंग के हिसाब से ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग फील्ड चले जाता है। जाने के बाद नॉर्मली पढ़ने का मौका कभी नहीं मिलता है, पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता है, पढ़ने के लिए मन भी लगता नहीं होगा। इसीलिए तो ऐसा प्रोग्राम हम लोग अरेंज कर रहा है। आप कहाँ छोड़ा कब पढ़ने वाला चीज़, 2 साल ट्रेनिंग के बाद उसके बाद अब पढ़ने का मौका ही नहीं मिला है, तो ऐसे वाला मौका लेना चाहिए। 1 हफ्ता आप इधर ट्रेनिंग पर आया है तो कोशिश कर लीजिए कि कितना इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकता है। ऐसे नहीं है कि ओनली फॉरेस्ट फायर के बारे में ही आपका जानकारी लेना है बोल के नहीं है। आपका डिवीज़न में चल क्या रहा है, बगल वाला डिवीज़न में क्या चल रहा है, ये वाला चीज़ को आप लोग कैसे करते हैं, आपका क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, आपस में आपको बात करने के लिए बहुत मौका तो मिलता है। अदरवाइज सब फील्ड जाने के बाद क्या हो जाता है, एक बीट ऑफिसर अपना बीट का काम में रहता है, एक कैंप ऑफिसर अपना कैंप का काम में ही रहता है। अब कभी भी आपस में बात करना है, मौका ज़्यादा नहीं मिलता है, रेयरली मिलता है। टू द मैक्सिमम बात करना है, फ़ोन में बात करो, ऐसे ही तो चलता है। ये एक प्लेटफॉर्म है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर फॉरेस्ट फायर बट आल्सो फॉर मेकिंग यू पीपल टू अंडरस्टैंड अमॉन्ग यूर सेल्व्स। अपना डिवीज़न में क्या चल रहा है, अपना रेंज में क्या चल रहा है, उधर क्या प्रॉब्लम है, इधर क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सेटल करता है, सब चीज़। आज का देश में बहुत चीज़ ऊपर आते ही रहता है। आपको पता होगा कि सो मेनी अदर प्रोग्राम्स हम लोग करते ही रहता है। एग्जाम्पल बोलना है तो एक पेड़ माँ का नाम, एक प्रोग्राम तो चलता है। ये प्रोग्राम में तो करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हो सकता है कि आपका डीएफओ जस्ट ऊपर से बोला हुआ कि ठीक है इतना पेड़ लगाना है, एक पेड़ का नाम पर बोल के, उसी के आगे पीछे का कहानी क्या है, अंडमान में अभी तक कितना प्लांटिंग किया है, हम और आगे करना है तो क्या करना चाहिए। और उसके बाद मिस्टी बोलकर एक प्रोग्राम है, मिस्टी प्रोग्राम इज रिलेटेड टू मैंग्रोव्स। उसमें कितना लोगों को पता है, आइडिया नहीं है। मे बी आप लोग वाइल्ड लाइफ डिवीज़न में पोस्टिंग होगा, वर्किंग प्लान में पोस्टिंग होगा, आपका उसका बारे में आइडिया ही नहीं हो सकता है। बट अभी ऐसा वाला मौका में बातचीत करने से हाँ हमारा बीट में हम लोग ये काम करता है, मिस्टी का काम करता है, हम लोग एक पेड़ माँ का नाम पर हम तो प्लांटेशन करता है। और मियावाकी प्लांटेशन हमको तो बोला गया है कि JNV स्कूल्स में करने के लिए हम लोग काम कर रहा है। साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान स्टाफ उसका बारे में बात कर सकता है। ऐसे एक एक चीज़ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सबको तो पता तो नहीं होगा। ये मौका लेके आप लोग आपस में बात करके वो वाला चीज़ को आगे लेके जाना है। मैं सभी को ये चीज़ बोलते ही आता हूँ, सर्विस हम ज्वाइन करने के बाद अभी तक हमारा कितना एक्सपीरियंस हुआ है। हम तो बोलता है कि मेरे को तो 15 साल एक्सपीरियंस है, 20 साल एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इज गैदरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड न्यू नॉलेज।
कब तक हमारा इन्फॉर्मेशन बढ़ता नहीं है हमारा दिमाग में, हमारा सोच कभी भी बदलता नहीं है। सिर्फ वो ट्रेनिंग में हम क्या सीखे उधर ही हम बैठ गए तो फिर वो एक्सपीरियंस कभी माना नहीं जाता है। एक्सपीरियंस है कि ठीक है उसी टाइम को तो सिचुएशन होता, अभी इतना चेंज हो गया, हम तो आगे जाना है, उसी के हिसाब से हम नया काम करना है। बगल डिवीजन में ये करता है, हम भी करके उसी से बढ़िया करेंगे बोलकर सोच समझ के हम लोग काम करके आगे लेके जाना है। ये भी एक रीज़न है कि नॉर्मली हम कंपलसरी ट्रेनिंग बोलकर आपको इधर बुला रहा है। इसी में आपको थोड़ा एक चीज़ मेंटली आपको फ्री होगा कि आपका बीट में चल क्या रहा है, अभी सोचने की ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि अभी चार्ज में कौन है वो देख लेगा। ये 5 दिन आप उधर से दूर आके इस तरफ अगेन आपका ट्रेनिंग पीरियड के टाइम के पास वापस आके उधर बैठ के आप आपस में बातचीत करके चल क्या रहा है। आपका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, नया ट्रेनिंग्स भी है साथ में, उनके साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनका सोच क्या है क्योंकि मोरलेस से तो 2 डिफरेंट जनरेशन हो गया। वो तो अभी भी आया है, आप लोग तो सर्विस में आके 10, 15, 20 साल तो हो चुका है। 20 साल के अंदर सोच में कितना चेंज हुआ है, ये सब चीज़ आप आपस में बात करने से तो आपको इन्फॉर्मेशन पड़ेगा। इसलिए ये मौका लेके आप कितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फील्ड जा सकते हैं, फील्ड जाके कितना अच्छा काम कर सकते हैं वो सोच के आप ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए। इसी मौका में मैं सबको मेरा तरफ से बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ एंड आल्सो टू डायरेक्टर पी एंड ऑल द ऑफिसर्स प्रेजेंट ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। तो प्रॉपरली अपना अपना प्रेजेंटेशन तो बताएगा, उसी में आप ज़्यादा ध्यान रख दीजिए। दिस इज जस्ट फॉर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन। फॉरेस्ट फायर मतलब क्या है आप लोगों को आइडिया होगा। फायर छोटा सा चीज़ है, इफ इट्स अ फॉरेस्ट फायर इट इज़ एन अनकंट्रोलेबल फायर होना चाहिए विच इज़ नॉट एबल टू बी कंट्रोल्ड बाई वी पीपल, देन इट विल बिकम अ फॉरेस्ट फायर। फिर ये बाकी आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए। फॉरेस्ट फायर हमारा फॉरेस्ट का फ्लोरा एंड फाना का तो डिस्ट्रॉय तो कर ही देता है, इसी का वजह से बैलेंस नेचर में बहुत हो जाता है, हैबिटेट बहुत खराब हो जाता है, नाउडेज इंसिडेंट्स इंक्रीज होते ही जाता है। उसका मेनली हम लोग क्या बोलते हैं रीज़न क्लाइमेट चेंज बोलता है। बट क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो किसके वजह से होता है, हमारा वजह से होता है, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। उसका वजह से तो बहुत फॉरेस्ट फायर होते रहता है। ठीक है, ग्लोबली देखने से दिस इज वन ऑफ द पॉइंट वी यूज टू नो इट। फॉरेस्ट फायर होता है, फॉरेस्ट फायर में बहुत चल जाता है, सब चीज़ सबको पता है। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, उसी में एवरी टाइम यूज टू मेंशन उन टर्मिनोलॉजी, कार्बन सिंकिंग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना ये हो रहा है बोलकर हम बातचीत करते रहता है। हम फॉरेस्ट तो बनाता है, फॉरेस्ट की वजह से, फॉरेस्ट ट्री की वजह से कार्बन सिंक हो जाता है। बट व्हेन द फॉरेस्ट फायर हैपन्स, ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड are getting released into the atmosphere. Again it becomes a part of a climate change concern. ठीक है, इसीलिए हमको वो भी याद में रखना है। हम लोग फिजिकली उसको देख नहीं सकते हैं, बट इट इज थियरिटिकली प्रूवन एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वॉट एवर वी से अबाउट इट। फॉरेस्ट इज गुड, ट्री ग्रो करना है दैट इज नेसेसरी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड सिंक के लिए। But when any forest fire happens, that releases all the carbon dioxide into the atmosphere, that creates problem in the later on stage. ठीक? Causes of forest fire, actually both so many causes are there, but few points में आपके लिए तो लेकर आना चाहता था। First and foremost cause, natural cause बोलने से lightning है। lightning की वजह से forest fire होता है। आप लोगों को कुछ आइडिया है? एटलीस्ट पेड़ तो चल जाता है, वो पता है आपको? कहीं भी देखा है? फॉरेस्ट में देखा है? नहीं देखा है? दिगलीपुर में है, मेनली पर मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके बाद आप लोग कभी भी मैंग्रोव में जाता है थोड़ा ध्यान करके देख लीजिए, कुछ जगह पर ओनली 5 trees might have dried up totally। अगल बगल में पेड़ रहते हैं, ओनली 5 ट्री का उसी में ये हो जाता होगा, ड्राई होके दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसका मेन रीजन है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर ड्यू टू द लाइटनिंग।
ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आज का डेट में अराउंड 108 प्लेसेस में ऐसा वाला जगह को तो FSI ने नोटिफाई करके रखा है। ठीक है, जिसमें भी आपका कोई भी जुरिस्डिक्शन का अंदर आया तो होगा। इसलिए इसके बाद कभी भी फील्ड जा रहा है तो लोगों से बात करके लोग तो बोलता है, दिगलीपुर में लोग तो बताता था, मैं DFO उधर था उसी टाइम, लोग बोलता था उधर जाने के टाइम राधा नगर का आगे क्रीक में अंदर जाता है ना, वो क्रीक में जाने के टाइम लोग बोलता था कि इधर एक जगह पर पेड़ तो मरा है, तो लाइटनिंग हुआ था 5-6 साल पहले, उसके बाद उधर से अभी तक एक भी ये नहीं आ रहा है, ग्रास भी नहीं आ रहा है, उतना खराब हो गया, वो तो लाइटनिंग के इफेक्ट बोलकर लोग बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अब टेक आप लोगों के लिए डिस्कशन से इसके बाद अब कभी भी पेट्रोलिंग जा रहा है थोड़ा ध्यान रख दीजिए, भारत पे कहीं कुछ हुआ है क्या, मेनली बिकॉज ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, उसके बाद वल्कनिक करप्शन आपका तो पता होगा, बैरन आइलैंड है। और दूसरा चीज़ यू मे बी नोइंग इट, फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ, हमारा नाथपंडम आइलैंड, ये तो डॉर्मेंट वल्कनिक करप्टेड आइलैंड है, मालूम है आप लोगों का? इट इज डॉर्मेंट आइलैंड, पहले था अभी तो बंद हो गया, इसीलिए उधर आप कितना भी वेजिटेशन देख रहे हैं उतना स्ट्रांग वेजिटेशन नहीं है उधर। ठीक है, वो तो उसके बाद वल्कनो आने के बाद वो राख बना के उसके ऊपर सॉइल मिल के थोड़ा थोड़ा पेड़ आता है। इट इज़ नॉट अ बिगर साइज ट्रीज, सभी पतला पतला ट्रीज है अभी भी नाथपंडम आइलैंड है। ठीक है, और दूसरा चीज़ एक हफ्ता पहले की बात है, हमारा 12 टन में क्या चल रहा है, वल्कनो आ रहा है, आने के बाद वो जगह देखा है फोटो में पूरा काली काली है। ठीक है, यही वल्कनो बड़ा फेस में होता है तो टोटल एरिया क्लियर हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर क्लियरिंग द एरिया। ठीक है, दैट इज वन रीजन फॉर वल्कनिक करप्शन। ये तो मड वल्कनो है इसलिए उसी में फायर नहीं आता है। यही बैरन आइलैंड में जाके देख लीजिए, बैरन आइलैंड में तो अभी तो एक्टिव है, मालूम है आप लोगों का, फोटो वीडियो तो देखा होगा। ठीक है, वो भी तो अभी एक्टिव है, उसी में तो फायर आते रहता है, उसका वजह से भी इतना भी पेड़ आता है सब तो मर जाता है। उसके बाद हीट पैटर्न, आजकल तो हीट पैटर्न टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के सबसे चेंज होते ही रहता है, इसका वजह से हीट पैटर्न चेंज होता है। तो ड्यूरिंग द समर सीजन में ज़्यादा टेम्परेचर आ जाता है, उसका वजह से अपने आप पकड़ लेता है फायर, फॉरेस्ट उसी के हिसाब से डैमेज हो जाता है। अभी रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर 3-4 साल का अंदर उत्तराखंड में फायर हुआ, आप लोगों को पता होगा, मेजर डैमेज हो रहा है, वो मेनली बिकॉज ऑफ दी हीट पैटर्न ऑफ द नेचुरल टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से वो तो हुआ है। ठीक है, इसके बाद दिस आर ऑल द नेचुरल कासेस। नेचुरल कासेस फॉर द फॉरेस्ट फायर इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 10%, रिमेनिंग 90% किसके वजह से हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी के हिसाब से फॉरेस्ट फायर हो रहा है। ह्यूमन इंटरफेरेंस में पहले तो ये कि स्मोकिंग इज अ मेजर इश्यू। ठीक है, आप अंडमान में ज़्यादा नहीं देखा होगा, बट हमारा देश में और थ्रू आउट द वर्ल्ड स्मोकिंग इज अ मेजर रीजन फॉर फॉरेस्ट फायर। लोग करता क्या है, स्मोक करके ऐसे ही डाल के चले जाता है, नहीं तो अपना सिगरेट बट फाइनली है उसी को एक्सटिंक्ट नहीं करके ऐसे ही छोड़ के चले जाता है। वो दिस इज कोरिलेटेड विद द थर्ड पॉइंट में पहले बोला था, हीट पैटर्न बोलकर बताया ना, ऑलरेडी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसी में एक सिगरेट बट विदाउट एक्सटिंग्विशिंग वो ऐसे ही चलते ही रहता है, तो तुरंत अगल बगल में कोई ड्राई लीफ और ड्राई ग्रास वगैरह है तुरंत आप तो पकड़ लेता है, उसका वजह से भी फॉरेस्ट फायर हो ही जाता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट, कैंप फायर, इट मे नॉट बी मच इन अंडमान एंड ऑल्सो नॉट मच इन इंडिया। वर्ल्ड लेवल में दिस इज वन ऑफ द रीजन वही फॉरेस्ट फायर इज हैपनिंग। उसके बाद फायर वर्क्स मेनली फेस्टिवल का टाइम में कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का अगल बगल में कुछ करता है, उसी टाइम हो ही जाता है। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज बर्निंग डेब्रीज। ये भी अंडमान में भी होता है, मेनलैंड में भी होता है। डेब्रीज समर का टाइम है, लैंड क्लियर करना है बोलकर हम लोग क्या करता है, डेब्रीज निकाल के उसी में फायर डाल देता है। इवन इन एग्रीकल्चर फील्ड में भी ये वाला काम चलता है।
लास्ट टू लास्ट ईयर दिगलीपुर में हुआ था फायर, वो हेलीकॉप्टर भी आके पानी डाला, मालूम है आप लोगों का? हेलीकॉप्टर में आके पानी डाला था, वो भी उसी टाइम से। दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द डेब्रिस, बर्निंग डेब्रिस अगल बगल में था, उसी का तो वो आग चलाया, उसी की वजह से क्या हो गया, थोड़ा हवा मारा, इधर से उस तरफ चले गया फॉरेस्ट के अंदर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर फॉरेस्ट फायर। इसी में हमारा टेक अवे ये होना चाहिए कि हम लोग फील्ड पर जा रहे हैं, अगल बगल में एग्रीकल्चर लैंड है, ऐसे कुछ काम कर रहा है, उनको मना करने वाला हमारा काम है। दूसरा चीज़, इन केस वो फायर बर्निंग कर रहा है तो फिर उसी का अगल बगल में ये प्रॉपर फायर लेन के तरह विड्थ है, विड्थ होने से क्या होगा, आपको फायर स्प्रेड नहीं होगा। उसके हिसाब से तैयार है किया बोलकर एक बार देखना तो चाहिए, ठीक है। दिस इश्यू नॉट ओनली फॉर फॉरेस्ट फायर एंड आल्सो एनवायरमेंट पोल्यूशन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये। अभी आप देश में देख लीजिए, हरियाणा में, हरियाणा दिल्ली वो एरिया में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी मेनली वो लोग करता क्या है, अपना डब्रिस को बर्न करके छोड़ देता है। उसी टाइम नॉर्थ इंडिया में क्या सीजन है, वो विंटर, विंटर सीजन में आपको फॉग इतना लगेगा, इसलिए कितना भी स्मोक है वो भी ऊपर नहीं जाएगा, वो तो नीचे लेवल में ही घूमते ही रहता है, इसलिए ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। दिल्ली में, दिल्ली पोल्यूशन ड्यूरिंग द विंटर मंथ इज मेनली बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ डब्रिस इन हरियाणा एंड पंजाब। इसलिए अभी तो गवर्नमेंट तो स्पेशल ऑर्डर निकाला गया है कि ये साल में तो ऐसे कुछ बर्निंग नहीं करना है बोल के, ठीक है। इतना ही तो मेरा तरफ से बोलने का है, ठीक। बट फॉर योर कन्वीनियंस में रिपीट करना है तो एज अ फील्ड स्टाफ, फॉरेस्ट फायर कभी भी हो सकता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिजास्टर, so it is our responsibility to be prepared for that. Staff, because they are the first responders during any wildlife rescue, forest fires or emergency situations. Proper training equips them with the necessary knowledge, skills and techniques to handle situations safely and effectively. Well-trained frontline staffs play a crucial role in implementing conservation measures on the ground. अब मैं श्री राजू राठौर सर, फॉरेस्ट रेंजर FDI से अनुरोध करती हूँ कि वहाँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए स्टेज पर आ जाए। सर प्लीज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Respected CCF sir, respected FDI director sir, respected Vikrant sir and respected Pawan Gupta sir, all the respected dignitaries and my staff, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली हमारे CCF सर का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया। सर आपके वर्ड्स ने हमें बहुत इंस्पायर किया और हम आशा करते हैं कि आप जो भी हमें बताए हैं वो हमारे ट्रेनिंग्स को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को अपने फील्ड में बहुत काम आएगा। और जितने भी लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को अरेंज करने में हमारी मदद की है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Now it's a time for short break. I request all the chief guests and the other dignitaries to proceed towards the director chamber for refreshments, please.